Protesters began streaming into Jantar Mantar early on Tuesday morning after the Cockroach Janata Party, or the CJP, called for the agitation to continue. Delhi police has allowed demonstrators to return, saying peaceful protests will be permitted. However, heavy deployment of Delhi police and the Rapid Action Forces personnel remains in place. The protesters continue to demand the resignation of the Education Minister over the alleged NEET paper leak. Monday's march towards the parliament witnessed chaotic scenes, with thousands taking to the streets, leading to clashes with the police, traffic disruptions and detentions. Cockroach Janata Party's president Abhijit Dipke apologized to supporters who were injured during Monday's protest, particularly women protesters whom he alleged were assaulted by male police personnel. Dipke said he regretted not being able to protect supporters from what he described as inhumane police action and asked those injured to contact him personally. Leader of the opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, strongly condemned the actions that occurred in Jantar Mantar, specifically the police lathi charge against protesting students and the heavy security crackdown. Delhi police has intensified security arrangements on routes leading to the parliament, while roads around Jantar Mantar remain open. Additional personnel have been deployed at strategic locations amidst concerns that protesters could attempt another march. Several opposition leaders are also expected to visit the protest site. Delhi police has registered an FIR against unidentified individuals at the Connaught Place police station in connection with the violence and alleged vandalism of vehicles during Monday's protest march. Responding to the controversy, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said steps have already been taken to prevent future paper leaks. He said the issue should not be viewed as one involving only a state or the centre, and stressed that everyone must work together to ensure those responsible are punished. Rijiju also said the matter should rise above partisan politics and called for making the examination system foolproof. The protest is expected to continue through the day, with the Delhi police maintaining heightened security and closely monitoring any attempt to march towards Parliament. All eyes are now on the government's response as the demand for accountability over the alleged NEET paper leak grows louder. दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई, नई दिल्ली इलाके में अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ की गई, सीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधिकारियों को पीटा गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सहित तमाम लोग घायल हुए। अब आप देखेंगे कि पुलिस वालों से एक बार फिर जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ पर पहले एक बार पुलिस के साथ झड़प हुई और एक बार फिर यहाँ पे जो है वो झड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त जो है जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मीडिया को भी फिलहाल काम करने से रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि इस वक्त जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस से लगातार जो है सुबह से ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो भिड़ रहे हैं, बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुबह एक बार पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और अब दोबारा जो है ये देखेंगे आप किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं। फिलहाल अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर आगे बुलाया जा रहा है। पहले भी दूसरे गेट पर जो पुलिस वाले हैं उन लोगों के साथ बहस हुई है। तो इस तरीके से सुबह से ही एक बार फिर जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू कर रहे हैं और लोगों के साथ, मीडिया के साथ, पुलिस वालों के साथ ये लोग बदतमीजी करना शुरू करें। आप देखेंगे जो भीड़ दिखाना चाहेंगे हम आपको कि सुबह से ही एक बार फिर यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। अभिजीत दीपके भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 70 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। कई गाड़ियाँ जो मीडिया की थी और पुलिस वालों की थी उनको तोड़ा गया है। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन रात तक ये जो हंगामा है सीजेपी प्रोटेस्टर्स की तरफ से चलता रहा। और आप देखेंगे कि इस वक्त भीड़ हो गई है अभिजीत दीप के सामने। अभिजीत कुछ कहना चाहेंगे? सर डंडे क्यों चला रहे हो आज? डंडा क्यों दिखा रहे हो? अगर मैं एक सेकंड, कल आपका मन नहीं भरा खून बहाकर बच्चियों का, अभी भी डंडे दिखा रहे हो आप? मत करिए सर, कल बहुत खून बहाया है आप लोगों ने, कल बहुत खून बहाया है। मैं मिलकर आया उन बच्चों से हॉस्पिटल में जिनके ऊपर लाठियां चली है, सर फूटा, एक लड़की क्रिटिकल है।
एक लड़की बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी भी आप लोग डंडे दिखा रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कैसे ऐसे कर सकते हो? आपके घर पर बच्चे नहीं है क्या? आपके अपने बच्चे नहीं है क्या? मत करिए। बीजेपी वालों ने हिंसा की। आप देखेंगे कि अभिजीत जो है वो पुलिस को आकर के कह रहे हैं कि आप डंडे चला रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे कि आज सुबह से भी जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस के साथ धीरे धीरे भिड़ना शुरू कर रहे हैं, उनके साथ जो है अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पुलिस लगातार कानून व्यवस्था बनाने की फिलहाल कोशिश कर रही है। आज हमने स्टूडेंट्स के ऊपर जो असॉल्ट हुए हैं और लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज़ उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। Meanwhile, the political heat over the police action on CJP protesters has intensified, with opposition parties mounting a coordinated attack on the centre, both inside and outside the parliament. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra termed the police action disgusting, saying students seeking a better future were met with force instead of dialogue. She demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, saying accountability cannot be avoided. The opposition's demand found support across party lines. Azad Samaj Party chief Chandrasekhar Azad accused the government of crushing democratic dissent, while Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal said students protesting over alleged flaws in the examination system were answered with lathis instead of reforms. Congress leader Supriya Srinath questioned why BJP President JP Nadda was engaging with the CJP leaders instead of the education minister, insisting only Dharmendra Pradhan must answer the students' concerns. From Tamil Nadu, Minister CTR Nirmal Kumar backed the protesters, saying their demands were genuine, while renewing the DMK's opposition to NEET. DMK MP Kanimuri, Congress leader Pawan Khera and Samajwadi Party leaders Akhilesh Yadav and Dimple Yadav also condemned the police action, alleging an attack on democratic rights and demanding justice for students along with the education minister's resignation. एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं।
ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ये रखा है, तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए इनका ना स्टैंडर्ड नैरेटिव है बीजेपी वालों का। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे, मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। ये जो आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये आरोप गलत हैं। ये बच्चे हमारे हैं, क्या मांग रहे हैं ये बच्चे आपसे? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद करो। एक प्रधानमंत्री होकर पेपर लीक कराना बंद नहीं कर सकते आप? या तो आप बेबस हो और या पेपर लीक का पैसा आप तक पहुंच रहा है। और कहते हैं बच्चे एंटी नेशनल हैं, बच्चे आतंकवादी हैं। तो जानना चाहती हूँ जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा किस हैसियत से मिल रहे हैं? क्या जेपी नड्डा इस देश के शिक्षा मंत्री हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो गृह मंत्री हैं? जेपी नड्डा क्या डिसीजन ले सकते हैं? जब अध्यक्ष थे तब तो डिसीजन ले नहीं पाते थे, रबर स्टैम्प थे। अब किस उससे मिल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, छात्र आंदोलन कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर यह नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? यूपीए की सरकार थी, गलत आरोप लगे, लेकिन लोगों ने नैतिकता और मर्यादा को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। एक पूरा देश चाहता है कि शिक्षा मंत्री गृह प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। संसद खाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक क्या तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? भाई लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर नहीं करेंगे तो कहाँ जाकर करेंगे? बताएं, ये बता दें साहब कि यहाँ कर सकते हो, वहीं करेंगे ना जहां आप देख पाओगे, जहां आप सुन पाओगे। क्योंकि आपको तो जनता की आवाज न सुननी है न जनता को देखना है। तो हम आपके दरवाजे पे आकर देश का नौजवान आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता है, अपना रोष दिखाना चाहता है, आप उससे डर जाते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लेकिन सरकार तो सहयोग मांग रही है आप लोगों से। कैसा सहयोग? से मसनी हो रहे हैं। कैसा सहयोग? हमारी बात मानिए, इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का। हमारी बात मानिए, पारदर्शिता लाइए परीक्षा में। हमारी बात मानिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, पूरा सहयोग मिलेगा। एक कुछ तो करके दिखाइए। ये लोकतांत्रिक देश है, एक लंबे समय से इसकी पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं? इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी
जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी रात से, ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि वो नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी, उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। We know that like last few days students has been protesting in Delhi and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students. And apart from that, like the central government should call the students. They have already called, but it is too late. But they have to talk to the students and fulfill their request, because it is a genuine request. It is not only theirs, but it is a request of all over India, because like whatever they have asked is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the process inform the students and get the protest solved as soon as possible. आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत, जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। Protest is the most democratic form of expressing the people's opinion, and they have been valid questions. Unfortunately, the government does not want to address or answer the questions, and they resort to violence against the people who are raising these questions, and this is totally unacceptable. Thank you.